आज का 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान मैथ्यू 3 चैप्टर, जेनेसिस 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8th चैप्टर। आज का 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय और उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से। Matthew 3 chapter. John preacheth his office and baptism. He rebuketh the Pharisees. Christ baptized by John in Jordan. First verse से पढ़ेंगे। In those days came John the Baptist, preaching in wilderness of Judea, and saying, Repent ye, the kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins, and his meat was locusts and wild honey. Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Bring forth therefore fruits meet for repentance, and think not to say within yourselves, We have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। 3 अध्याय पहले वचन।
से लेकर पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियों और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझाने की नहीं। यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जेनेसिस चैप्टर 6, 7, 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 6। The wickedness of the world which provoketh God's which provoketh God's wrath and causeth the flood, Noah findeth grace, the order, form and use of the ark. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they are fair, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. And Noah begot three sons, Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of gophen wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof with lower, second, and third stories shalt thou make it. And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female, of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind. Two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. Chapter 7. Noah with his family and the living creatures enter into the ark. The beginning, increase, and continuance of the flood, all flesh destroyed. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, and the male and his female, and of beasts that are not clean by two, the male and his female. Of fowls also of the air by sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth. For yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights, and every living substance that I have made will I destroy them off the face of the earth. And Noah did according unto all that the Lord commanded him. And Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth. And Noah went in, and his sons and his wife and his sons' wives with him into the ark, because of the waters of the flood, of clean beasts and of beasts that are not clean, and of fowls and of everything that creepeth upon the earth. There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.
And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were upon the earth. In the 600th year of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened, and the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. In the self same day, entered Noah and Shem and Ham and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife and the 3 wives of his sons with them into the ark, they and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort. And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life. And they that went in male and female of all flesh, as God had commanded him, and the Lord shut him in. And the flood was 40 days upon the earth, and the waters increased and bare up the ark, and it was lift up above the earth, and the waters prevailed and were increased greatly upon the earth, and the ark went upon the face of the waters, and the waters prevailed exceedingly upon the earth, and all the high hills that were under the whole heaven were covered. 15 cubits upward did the waters prevail, and the mountains were covered, and all flesh died that moved upon the earth, both of fowl and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man. All in whose nostrils was the breath of life of all that was in the dry land died, and every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both men and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven, and they were destroyed from the earth, and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark, and the waters prevailed upon the earth 150 days. Chapter 8. The waters as savage. The ark rested on Ararat. The earth dried. Noah goeth forth of the ark, builded an altar, and offereth sacrifice. God promiseth to curse the earth no more. First verse से पढ़ेंगे. And God remembered Noah and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged. The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained, and the waters returned from off the earth continually. And after the end of the 150 days, the waters were abated. And the ark rested in the 7th month of the 17th day of the month upon the mountains of Ararat, and the waters decreased continually until the 10th month. In the 10th month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen. And it came to pass at the end of 40 days that Noah opened the window of the ark which he had made. And he sent forth a raven which went forth to and fro until the waters were dried up from off the earth. Also he sent forth a dove from him to see if the waters were abated from off the face of the ground. But the dove found to no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth. Then he put forth his hand and took her and pulled her in unto him into the ark. And he stayed yet other 7 days, and again he sent forth the dove out of the ark, and the dove came in to him in the evening, and lo, in her mouth was an olive
olive leaf pluck off. So Noah knew that the waters were abated from off the earth. And he stayed yet other 7 days, and sent forth the dove, which returneth not again unto him any more. And it came to pass in the 601st year, in the first month, and for the first day of the month, the waters were dried up from off the earth. And Noah removed the covering of the ark, and looked, and behold, the face of the ground was dry. And in the second month, on the 27th day of the month, was the earth dried. And God spake unto Noah, saying, Go forth of the ark, thou and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee. Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, for both of fowl and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth. And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him. Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth after their kinds, went forth out of the ark. And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a sweet savour, and the Lord said in his heart, I will not again I will not again curse the ground any more for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite any more everything living as I have done, while the earth remaineth seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. उत्पत्ति 6, 7, 8 अध्याय, 3 अध्याय पढ़ेंगे। 6 अध्याय मनुष्य जाति के दुष्टता, पहले वचन से। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात सब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए। तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह 9 वचन से आगे। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है।
इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति में दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति की भूमि के पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तो उसको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जल प्रलय 7 अध्याय। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो दो लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले वस्तुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनैले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और
ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जन पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्यों मर गए जो जो स्थल पर थे। उनमें से जितनों के नथुनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। जल प्रलय का अंत 8 अध्याय पहले वचन से। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इनसे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। नूह की आयु के 600 वर्ष 1 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तो अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फले फूले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। होम बलि का चढ़ाया जाना। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा ही उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे।
2 years Bible reading plan, Matthew 2 chapter 1 to 12 verse, Genesis 3 chapter। जैसा मैंने आपको बताया है कि 1 साल का बाइबल रीडिंग हम रीडिंग करके कंप्लीटली अच्छे से ध्यान से रीड करेंगे, समझेंगे उसे पढ़ते समय। और 2 साल का बाइबल रीडिंग इसी में से आता है, जो पहले साल का बाइबल रीडिंग है इसी का एक हिस्सा होता है जो हम पढ़ चुके होते हैं। तो इसकी वजह से 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में जब अध्याय बताए जाएंगे, वचन बताए जाएंगे, तो वो पढ़ने के लिए नहीं, वह मनन करने के लिए बताए जाएंगे। उसके ऊपर हमने बाइबल स्टडी लेना है, हमने उसके ऊपर स्टडी करना है, वचन के आधार पर अभ्यास करना है। अभ्यास मतलब उसके विशेषताएं, परमेश्वर क्या बताता है उस वचन के बारे में, इसको अलग अलग बाइबल में से, प्रचार में से सुन के सीखना है। और जब इसे हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर का एक अलग प्रभाव, जो स्रोत है अभिषेक का, अलग एक अभिषेक परमेश्वर की ओर से एक नया अभिषेक खुलता जाएगा। और हमारा जितना ज्ञान बढ़ेगा परमेश्वर में, उतना हमारे अंदर का अभिषेक का फैलाव बढ़ता जाएगा और स्थिरता आएगी हमारे सारे फैसलों में, हमारे सारे सोचों में स्थिरता आ जाएगी और मन के अंदर की गंदगी ख़त्म हो जाएगी। मन के अंदर का हर एक दुविधा, चिंता, सब कुछ ख़त्म होता जाएगा। ये एक रास्ता है जिसके अंदर से बिगड़े हुए सारे अवस्था को ठीक करने का मौका है बाइबल स्टडी करते समय, क्योंकि उस समय परमेश्वर हमारे पर्सनल कुछ ऐसी बातें होती है जिसके विषय में हम किसी को नहीं बताते हैं। ये बाइबल स्टडी करने की वजह से वो पर्सनल एरिया ऑफ लाइफ जो है उसके साथ परमेश्वर डील करता है, उसके साथ मुकाबला करता है और हमको उसके अंदर से रास्ता निकाल के देता है कि हमने उस व्यवहार को किस प्रकार से पूरा करना है, या उस व्यवहार के विषय में हमने क्या करना है, या हमारे अंदरूनी जीवन के अंदर कहाँ कच्चा रह गया ज़मीन है उसे पक्का करना, या फिर हमारा कोई रास्ता जो हम बिगड़े हुए चले तो हमें सीधा करना। ये सारा चीज़ मरम्मत जिसे हम कहते हैं बाइबल स्टडी के वक्त में, वो पर्सनली हमारे लाइफ की मरम्मत हो रही होती है। ओके, अगर हमारी मरम्मत अच्छे से हो जाए, अगर हमारी अच्छी ज़मीन बन जाए, तो जो हम रोज़ बाइबल रीडिंग पढ़ रहे हैं, जो 1 साल का बाइबल रीडिंग पढ़ते हैं, कबूली करते हैं और मनन के वचन पढ़ते हैं, और फिर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो वचन सिखाया जा रहा है उसके सारे समझ लेते हैं हम सब कुछ को, उसके आधार से बाइबल रीडिंग, उसके आधार से मनन, उसी के आधार से कबूली, सब कुछ फलदायी हो जाएगा। क्योंकि ज़मीन हमारा हृदय है। अगर हमारा हृदय पूरा अच्छे रीति से तैयारी में रखेंगे तो जो हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटी से प्राप्त कर रहे हैं वो सब इतना गहराई में, हमारा लाइफ इतना शॉर्ट टर्म में, छोटी अवधि के अंदर बहुत बड़ी फसल परमेश्वर के राज्य के लिए ला सकता है। ये सीक्रेट है। ओके, ये गुप्त बातें हैं जो परमेश्वर रिवील करता है, प्रकट करता है कि हमने कौन से रास्ते से निकलना है। तो हम इस रास्ते से निकल रहे। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को हमने बाइबल स्टडी के रूप में उठाना है और हमसे व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर क्या मुकाबला कर रहा है व्यक्तिगत रूप से, ओके, उसको हमने होने देना है। तो 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में जो अध्याय है, अभ्यास करने के लिए आपने करना है, यहाँ वो अभ्यास करो ऐसा नहीं दिया है। यहाँ पर 2 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान इतना ही दिया है, लेकिन इस साल मैंने इसे इस प्रकार से उठा लिया है कि 2 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान को मैं स्टडी के लिए यूज़ करूँगी और 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान को मैं रीडिंग, डेली बाइबल रीडिंग करने के लिए, रोज़ पवित्र वचन को पढ़ने का योजना, ऐसा मैं उसे चलाऊंगी मेरे लिए पर्सनली। और 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को मैं मेरे लिए पर्सनली अभ्यास के लिए इस्तेमाल करूंगी। ये मेरा फ़ैसला है और मैंने इसका लाभ देख लिया है। इसकी वजह से मैंने आपको भी उस फैसले के लिए तैयार किया कि आप हम सब मिल के
एक रास्ता ऐसा उठाएंगे जिसमें अब से 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान अभ्यास के लिए और 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हमने रोज़ पढ़ने के लिए आवाज़ उठाकर उसे रोज़ पढ़ने के लिए है, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। ये 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम इस्तेमाल करेंगे। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान अभ्यास के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। मैथ्यू 2 चैप्टर 1 to 12 और जेनेसिस 3 चैप्टर। मत्ती 2 अध्याय 1 से 12 वचन आज बाइबल स्टडी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और उत्पत्ति 3 अध्याय उपयोग करना है अभ्यास के लिए, बाइबल स्टडी के लिए। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।